Hello everyone. I'm back with another video based on case-based study questions for class 10th. I hope आप सबने कल मेरा वीडियो देखा होगा and I hope you found those questions easy to solve and I have also shared the PDF link. You can click on the link and you can get all those questions. देयर वॉज वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स मुझे कमेंट में दे सकते हैं सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद अनदर एपिसोड ऑफ दिस केस पे स्टडी क्वेश्चंस सो द क्वेश्चन हियर इज two schools P and Q decided to award prizes to their students for two games of hockey rupees X per student and cricket rupees Y per student. School P decided to award a total of 9,500 rupees for two games to 5 and 4 students respectively. While School Q decided to award rupees 7,370 for the two games to 4 and 3 students respectively. Now, so there are two schools and two games are there, hockey and cricket. Rupees X is given per student for hockey, Y is given for rupees Y is given for cricket per student. Now the total award prize for given by school P is 9,500. By school Q, the total award prize is this much, 7,370. Now for the two games, that means 5 and 4 students respectively का मतलब क्या है कि respectively means 5 is representing hockey. That means 5 students are representing hockey, 4 students are representing cricket. तो 5 स्टूडेंट्स को कितने रुपीज मिलेंगे अगर x रुपीज मिल रहे हैं पर स्टूडेंट वन स्टूडेंट को x रुपीज मिल रहे हैं तो 5 स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे 5x रुपीज Similarly, they are saying 4 students. That means this is for P school P. Now 4 students यानी कि वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो y रुपीज हैं पर स्टूडेंट फॉर क्रिकेट सो दैट मीन्स 4 स्टूडेंट्स हैं तो उनको कितने रुपीज मिलेंगे 4x Now we come to the question based on the above information. Answer the following questions. Represent the following information algebraically in terms of x and y. So first part का आंसर यहाँ से बनेगा कि आपके पास बनेगी इक्वेशन 5x प्लस 4y क्योंकि जो टोटल अवार्ड है total of rupees 9,500 है so it will be equal to 9,500. This is for the school P. Similarly we will make the next equation जो कि Q school से है वहां पर आपको क्या given है rupees 7,370 is the total award price and two games to 4 and 3 students respectively. That means the second equation will be 4x plus 3y is equal to 7,370. So these are two equations that we have formed. Now the second part of A part, second ka A part is what is the price amount for hockey. That means we have to solve these equations and find out the value of x. So we can use the elimination method. So we will make the coefficients of the variable y same. तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से सेकेंड इक्वेशन को विल मल्टीप्लाई इट विद 4 so we will get the let's see तो ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 15x प्लस 12y और 9,500 मल्टीप्लाइड विद 3 so it will be 27,500 27,500 सेकेंड इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 16x प्लस 12y सो 7,370 मल्टीप्लाइड विद 4 ये बनेगा
29,480 rupees. Now we'll change the sign and we will eliminate this. So we are left with minus x and इसको solve subtract करने पर we'll get minus 980. So minus minus दोनों तरफ से cancel हो जाएगा. X will be 980. That means the prize amount for hockey is rupees 980. Now the B part, prize amount on which game is more and by how much. सो टू फाइंड आउट कि कौन सी गेम का प्राइस अमाउंट ज्यादा है, क्रिकेट का या हॉकी का, हमें क्रिकेट की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई थी. वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. सो वी विल टेक एनी इक्वेशन. या तो हम फर्स्ट जो स्टार्टिंग इक्वेशन है 5x + 4y वो भी ले सकते हैं. इसमें वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 980. सो 5 × 980 + 4y इज इक्वल टू 9,500. यहां से सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4y इज इक्वल टू 4,600 एंड y विल बी इक्वल टू 4,600 डिवाइडेड बाय 4 which is equal to 1,150. That means the क्रिकेट का जो प्राइस है that will be given as rupees 1,150 per student. Now it is saying that by how much it is more. So by how much means we have to find कि कितनी ज्यादा है क्रिकेट की वैल्यू as compared to hockey. So we'll do the difference. So 1,150 minus 980. This will give us the answer as rupees 170. That means 170 rupees ज्यादा है as compared to hockey. Now, what will be the total price? Now, the third part, what will be the total price amount if there are two students each for two games? यानी कि अभी आपको क्या गिवन था कि अगर वन स्टूडेंट है, जैसे कि अब ₹X पर स्टूडेंट था, है ना. अब उन्होंने बोला टू स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम टू गेम्स. सो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी इक्वेशन. इक्वेशन विल बिकम थर्ड पार्ट 2x + 2y. यानी कि x था फॉर हॉकी के लिए ₹X फॉर फ्रॉम द गेम हॉकी पर स्टूडेंट, ₹Y वॉज फॉर द क्रिकेट गेम पर स्टूडेंट. सो अब 2 हो जाएंगे तो 2x + 2y. फाइन. हमें बताना है इसका टोटल कितना बनेगा. सो x और y की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं. x इज 980 + 2 × y जो है दैट इज 1,150. तो इसको सॉल्व करेंगे. सो विल गेट ट्वाइस ऑफ 980 इज 1,960 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस 1,150 इज 2,300. और यहाँ से हमारा जो टोटल बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ₹4,260. दैट मीन्स दिस इज द टोटल award price if there are two students from each game. Okay. Now coming to the next question, that is, let's see the next one. So this is the next question. In this question, you are given a figure and the question says Jagdish has a field which is in the shape of a right angle triangle. AQC. Right angle triangle है AQC. He want to leave a space in the form of a square PQRS inside the field of growing wheat and the remaining for growing vegetable as shown in the figure. In the field there is a pole marked as O. तो यहाँ पर ये जो गिवन है ये एक आपको ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल AQC. सो दिस इज द ट्रायंगल AQC. Okay.
और यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसके इनसाइड इज अ स्क्वायर PQRS. This is the square inside it. Okay, and this is a pole that is passing. Pole is marked as O. ये आप दे सकते हो O marked है. So अगर आप नोटिस करो बेसिकली यहाँ पर ये x axis given है. This is the horizontal axis and this is the vertical axis जिसको इन्होंने y से denote किया है, vertical axis, and this O actually stands for your origin. Fine. And this is the x axis, this is the y axis. Okay, now let's see what is the question. Taking O as the origin, coordinates of P are, P के coordinates आपको given है -200, 0 and Q के coordinates given है 200, 0. PQRS एक square है. What are the coordinates of R and S? अब R और S के coordinates find out करने हैं. So देखिए, क्योंकि PQRS एक square है और हमें ये पता है these are the एक्सिस गिवन x एंड y एक्सिस. सो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि ये जो r कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा. अगर आप देखें, दिस इज द y एक्सिस, तो ये कितने यूनिट्स अप है फ्रॉम द ओरिजिन? 1 2 3 4 यूनिट्स अप. सो बेसिकली दिस इज 4. दैट मीन्स द y कोऑर्डिनेट इज 400. ओके, यहाँ से अगर आप नोटिस करें ये x एक्सिस से कितना अबव है. अगर हम यहाँ से देखते हैं, सो दिस इज द वर्टिकली अप, अपवर्ड कितना है 200, क्योंकि यहाँ पर Q का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इज 200. ठीक है, सो दैट मीन्स योर x कोऑर्डिनेट ऑफ R इज गोइंग टू बी 200 एंड ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस इट इज, यहाँ से अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 एंड द वर्टिकली अपवर्ड कितना है, सॉरी 400 है. तो यानी कि 200, 400 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R. ओके, राइट. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, अगर हम इसी तरह से एस के कोऑर्डिनेट्स देखें, अब ये देखिए लेफ्ट में है ओरिजिन के, राइट. दिस पी पॉइंट इज टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स है -200, इट इज टू द लेफ्ट, -200, 0. सो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो यहाँ से देखते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का इट इज -200, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट -200 हो जाएगा. और जो हॉरिजॉन्टली कितना अपवर्ड है, इट इज 1 1 2 3 4 यूनिट्स अप. सो दैट मीन्स 400 इज द y coordinate. Okay, so these are the coordinates of R and S. So basically we are just using how many upward steps we are moving, how many, what is the vertical distance, okay, from the origin, and we are using the coordinates P and Q. So this answers the first part. So second part जो है that says what is the area of the square PQRS? Area of square PQRS कैसे निकालेंगे? So let's see, अगर हमें साइड लेंथ पता चल जाती है तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. सो हम एक साइड अगर पता चल जाती है, सो दैट मीन्स लेट्स फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द साइड PQ. अब PQ, P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है? -200, 0 है और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 200, 0. सो लेंथ फाइंड आउट करनी है सिंपली. हम क्या कर सकते हैं? x2 - x1 मीन्स आप 200 में से to find the length PQ, what you can do, you can simply do 200 minus this first x1. So minus minus हो जाएगा plus. So that means this is going to give us 400 square unit. Sorry, 400 units. 400 यूनिट्स आपकी लेंथ हो गई ऑफ द साइड PQ. तो एरिया क्या बन जाएगा स्क्वायर का? 400 का स्क्वायर, बिकॉज ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, तो हर एक साइड लेंथ 400 हो जाएगी. तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 1 2 3 4. दैट मीन्स 1,60,000 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है,
third part is, okay, the third part is if s, ओके सॉरी, इसका बी पार्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर क्यू पी क्यू आर एस। अब जो पी क्यू आर एस ये है, इसमें जो लेंथ क्या है हमारे पास वो हमने बतानी है। सो हम देखो पी क्यू आर एस डायगोनल स्क्वायर की डायगोनल जैसे पी आर है इसकी लेंथ। सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, या फिर आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो एक फॉर्मूला दैट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर का। दिस इज द बी पार्ट, दिस वाज द सेकंड का ए पार्ट। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और वी कैन डायरेक्टली यूज दैट जो स्क्वायर का डायगोनल है उसका फॉर्मूला दैट इज रूट 2 इंटू द साइड, इंटू द लेंथ ऑफ साइड। सो रूट 2 इंटू द लेंथ ऑफ साइड हमारे पास कितनी थी? 400। सो सिंपली आप डायरेक्टली यहां से भी ये लिख सकते हो यूनिट्स, या फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ओके, now the third one, if s divides ca in the ratio k ratio 1, what is the value of k where a के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इज 200 कॉमा 800। नाउ if we notice this is ca, this is the line ca, c का कोऑर्डिनेट गिवन है -600 कॉमा 0, a का उन्होंने बोला है 200 कॉमा 800 है, s का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज -200 कॉमा 400, भी हमने किया था इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, राइट। सो हमें और ये गिवन है दैट एस डिवाइड्स दिस इन द रेशियो, लाइन इन द रेशियो के रेशियो 1, तो ये के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के? वी विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं इन द लास्ट थर्ड पार्ट। सो लेट्स सी, okay, so the section formula where s is given as the coordinates of s are -200 comma 400। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है दैट x इज इक्वल टू, लेट्स टेक द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, k टाइम्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस 1 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट आएगा किसका? c का। आप इसे x1 x2 भी ले सकते हो, राइट। ओके, c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? c के कोऑर्डिनेट्स है -600 कॉमा 0, और a का कोऑर्डिनेट है 200 कॉमा 800। तो x कोऑर्डिनेट होता है ना k इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2, तो हम यहाँ पर x a से डिनोट कर रही हूँ, x के कोऑर्डिनेट को a के कोऑर्डिनेट को और c के कोऑर्डिनेट को x c से, अपॉन k प्लस 1। और यहाँ पर ये जो x है ये किससे रिप्लेस होगा? इस s के कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट से, दैट इज -200 इज इक्वल टू k इंटू x का a क्या होगा? x a क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ a, x कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस x coordinate of c upon k plus 1। Now let's solve it. -200 is equal to 200k -600 अपॉन k प्लस 1 है, k प्लस 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1। इसको ओपन करते हैं, -200k -200 इज इक्वल टू 200k -600। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? k को एक तरफ ले जाते हैं, सो इसको इधर लेके गए तो -200k -200k, और ये 200 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 200 -600, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 400 और माइनस का साइन आएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 400, इधर डिवाइड करेंगे -400 से तो आपका आंसर आ जाएगा +1, यानी कि k की वैल्यू क्या है? 1। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी कंप्लीटेड।
One more question is there. Let's also try that. यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ हिल विच विल हैव एडवोकेट स्पेस फॉर पार्किंग। अब यहाँ पर ये एक प्लेग्राउंड गिवन है, ये उसका पार्किंग एरिया गिवन है। प्लेग्राउंड की आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। सो you can read here also, the length and the breadth of the rectangular playground are 14 units and 7 units. Okay. There are two quadrants of radius 2 units on one side of the special seats. यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये quadrants हैं जिनका रेडियस हमें कितना गिवन है, इनका रेडियस इज गिवन टू बी 2 units. ए फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। अब अगर मुझे पार्किंग एरिया का पेरीमीटर निकालना है, दैट मीन्स दिस वन, दिस इज द पार्किंग एरिया। तो ये सेमी सर्कल प्लस जो इसका ये डायामीटर है ये भी इंक्लूड होगा, राइट। सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। तो यहां से पार्किंग एरिया का पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, सेमी सर्कल का रेडियस। तो आप देखें ये पूरी लेंथ जो है ये 7 है, right? That means this is the diameter that is given to you as 7 units. तो जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 7/2 units, right? तो पेरीमीटर हमें सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 7/2 यूनिट्स। अब पेरीमीटर का अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैंने आपको बताया, एक तो हमें ये जो सेमी सर्कल है इसकी ये बाउंड्री चाहिए है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो होता है 2πr। अब ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस करना है तो हाफ करना पड़ेगा 2πr का। तो ये कितना बन जाएगा, πr। तो पेरीमीटर हो गया πr प्लस हमें क्या चाहिए, ये जो डायामीटर है ये भी तो लेना है, ये जो आपके पास डायामीटर है ये भी तो लेना है, राइट। दैट मीन्स इधर वी कैन से यहाँ पर डायामीटर कितना है प्लस डी कर देंगे। डायामीटर आपका है 7 यूनिट्स। पाई आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई हम ले रहे हैं 22/7 इंटू रेडियस आपका है 7/2 प्लस डायामीटर ले रहे हैं ये है 7। यहाँ से सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट द आंसर एज 11 plus 7, that is 18 units. So the perimeter of the parking area का perimeter is 11 plus 7, that is 18 units. Okay, now what is the total area of parking and the two quadrants? अब total area आपने निकालना है of parking and the two quadrants. एरिया ऑफ पार्किंग, अगर मुझे एरिया निकालना है ऑफ पार्किंग तो हमें देखा कि पार्किंग है वो सेमी सर्कल है। सो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ πr², राइट। सो हाफ इंटू पाई वी आर टेकिंग एज 22/7। नाउ द रेडियस हियर इज 7/2 का स्क्वायर, सो 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, this will get cancelled, this will get cancelled, and so we are left with 11 into 7, 77/4 units, square units is the area of the parking. Now the next was to find out also the area of two quadrants. So the area of two quadrants अगर मुझे find out करना है तो देखो, एक quadrant means it's 1/4 of the circle का area, right? 1/4 of the area of the circle, right? So that means अगर मुझे निकालना है, that means I have to do 1/4 into the πr²। बट क्योंकि मेरे पास कितने क्वाड्रेंट्स है, 2 क्वाड्रेंट्स है, तो हमें यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स है फॉर द क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पर इसको R1 ले सकते हैं। ओके,
टू जस्ट बी श्योर कि हम ये क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल रहे हैं। तो पाई की वैल्यू हम ले रहे हैं 22/7 और रेडियस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, R1 की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दैट मीन्स 2 × 2 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द टू क्वाड्रेंट्स इज 44/7 स्क्वायर यूनिट्स। Okay. Now, what is the ratio of the area of playground to the area of parking area? तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या है, वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की आपको लेंथ ब्रेथ गिवन है। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हम निकाल लेंगे। दिस इज द बी पार्ट। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 14, ब्रेथ इज 7 यूनिट्स। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 98 square units. Okay, they are asking to find out the ratio. So let's denote this as A1 एरिया ऑफ प्लेग्राउंड और एरिया ऑफ पार्किंग एरिया को A2 से डिनोट करते हैं। हमने पार्किंग एरिया का एरिया निकाला है, ये रहा 77/4 स्क्वायर यूनिट्स। इसको हम A2 से डिनोट कर देते हैं दैट A2 इज द एरिया ऑफ पार्किंग दैट मीन 77/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से रेशियो निकालनी है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया दैट मीन्स A1 का रेशियो फाइंड आउट करना है टू A2। सो A1/A2 कर देंगे। 98 डिवाइडेड बाय 77/4, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/77। ओके, सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 7 times 11, 7 times 14, so that is 56/11. So that is the ratio, that means 56/11 is the answer. Okay, अब आपका लास्ट पार्ट रह गया है, what is the cost of fencing the playground and parking area at the rate of ₹2 per unit? अब इसके आंसर्स मुझे जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू द फाइनल आंसर ऑल्सो। तो आप अपने आंसर्स बताइएगा मुझे फॉर द लास्ट थर्ड पार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड एंड पार्किंग एरिया को फेंस करना है तो एट द रेट ऑफ रुपीज पर यूनिट्स। सो थैंक you very much. Do like, share the video and do subscribe my channel.